जंगल की ना करो कटाई, जंगल ही जीवन है भाई. Here, I'm talking about an extraordinary and a very special day, Van Mahotsav, the Festival of Forests. It is all about saving our forests and showing our concern for the same. Today, it is the day to show our respect for our Mother Nature, for all that it has given to us. Namaskar, Suprabhat, and a very warm good morning to one and all. I, Shivani Das of B5, on behalf of Srinath College of Education, welcomes our honorable management, our respected teachers, our honorable judge, Sir Mr. Nirmal Kumar Verma, and all my lovely friends. Also, a very big thank you to all those participants who showed their interest to put up their views in front of us in today's group discussion round. Now, I would like to request our very beautiful and charming Jayashree ma'am to please take over for the welcome speech. Thank you, Shivani. Am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. प्रणाम, सुप्रभात, जोहार. मैं जयश्री सिंह वन महोत्सव के 5वें दिन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. जैसा कि हम सभी जानते हैं, वन हमारे लिए कितना उपयोगी सिद्ध होता है. वन के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं तथा इसके बचाव के लिए हमें वो सफल प्रयत्न हमेशा करते रहना चाहिए और हमेशा हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए. इन्हीं बातों को ध्यान में रख करते हुए श्रीनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन में वन महोत्सव का आयोजन जूम ऐप के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें कई प्रकार की प्रतियोगिता हुई. इसी क्रम में आज सामूहिक चर्चा प्रतियोगिता विद्यार्थियों के लिए रखी गई है, जिसके निर्णय के लिए आज हमारे बीच सुप्रसिद्ध श्री निर्मल कुमार वर्मा जी हैं. श्री वर्मा दामोदर वैली कॉर्पोरेशन कोलकाता के एडिशनल डायरेक्टर से सेवानिवृत्त हैं. सर, आज आप हमारे बीच ऑनलाइन जुड़े हैं. आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया तथा आप प्रतियोगिता के निर्णय के लिए हमें सफल सहयोग दे रहे हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार. धन्यवाद. मैं अपने महाविद्यालय परिवार की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ तथा आपके इस सफल सहयोग का मैं आजीवन आभारी रहूंगी. सर, आपका हमारे इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है. साथ ही मैं प्रबंधन के सदस्य, शिक्षक वृंद तथा अपने प्यारे विद्यार्थियों का भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ तथा उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ. एक बार मैं फिर ऑनलाइन जुड़े सभी गणमान्य अतिथि सह सभी विद्यार्थियों का मैं स्वागत करती हूँ. धन्यवाद. आप सबको मेरा नमस्कार. Namaskar, sir. Yes, ma'am. Yes. So, for today's group discussion round, I would like to introduce all the rules and regulations to the participants. Each participant will get exactly 2 minutes to speak their view in first round and 1 minute to defend in the second round. The participants will have to turn both their video and audio on throughout the entire competition. The participants must place the camera ensuring their full coverage. The decision of the judge shall remain undebatable. With due permission of the judge, sir, I would like to announce the commencement of the program. Sir, shall we begin the program? Of course. Now, I would like to request Eva ma'am and Bhavya ma'am to please take over and proceed the group discussion round. Okay. Thank you, Shivani. Thank you, Shivani. Thank you so much. Thank you so much. Before we begin, I would now request all the students to please put on their cameras, including the contestant, all the participants, all the audience, all the students, those who have joined now, are requested to please put on their camera and witness this live discussion. All the students are instructed to please put on their camera before we begin. Okay, fine. So now I will announce the names of the contestants one by one. Eva ma'am, are we ready with the timer? Yes, ma'am. And students, those who all are participating, when I'll ask for you to start, you will start, and when I'll ask you to stop, you have to stop at that time only. Okay? Is it clear? Most of the students have not switched on their cameras.
I hope the instruction is much clear. The timer will be regulated by Eva ma'am. वो आपको समय, आपका समय शुरू होने के लिए तथा समय खत्म होने के लिए आपको सूचित करेंगी. उसी अनुसार आपको अपने वक्तव्य को शुरू करना और समाप्त करना है. मैं सभी छात्रों से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया अपने कैमरास को ऑन करें और इस ग्रुप डिस्कशन में सक्रिय रूप से भाग लें. सुने हमारे छात्रों को और उनके विचारों को. Before we begin, I would request Judge sir to please give us the topic for today's discussion. आज के ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक सर. The topic will be ecosystem and forest. Okay. Ecosystem and forest. So, but students, I hope आपको टॉपिक क्लियर है. Ecosystem and forest. Okay. So our first. I want to know whether all the participants are clear about the subject or topic. Sir, if you could please tell them Yes, the topic in Hindi as well. अच्छा, Bilingual है तो इसलिए अगर आप बता पाएं तो. ecosystem and forest. जी. Or should I change the subjects? क्या मुझे topic change करना पड़ेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. जो टॉपिक. भाव्या मैम. यस सर. यस मैम. पारिस्थितिक तंत्र और वन हिंदी में. ओके मैम, प्लीज रिपीट वंस अगेन. पारिस्थितिक तंत्र और वन हिंदी में कहेंगे. जी, पारिस्थितिक तंत्र और वन हिंदी में. इंग्लिश में it is ecosystem and the forest. So now I introduce you to the first contestant, that is Shweta Kumari. From B5A. Yes. Shweta, your time starts. Eva ma'am, shall we start? Wait, ma'am. Shweta, your time starts now. Start. Shweta, All the start. best. All the best. Good morning, all of you. Good morning. I am Shweta from B5A, and dear friends, today we are here and we are given a very important topic and a very serious topic, that is ecosystem and forest. And there is a very beautiful saying in Hindi, that is आओ अपनी भूल सुधारे पर्यावरण का रूप सुधारे. कहते हैं वेद पुराण नहीं, हम सब वृक्ष के बिना नहीं होगा हम सबका कल्याण. So keeping in mind the balancing of ecosystem, we should always keep in mind that trees are the free natural resources, and if we talk about resources, we can also conclude we can also include the trees as a provider. And we should keep in mind with a great determination that trees provide us oxygen. So therefore we should not cut the trees. We should not cut the trees, and we should also look after the challenges that we are facing right now. Lots of trees are being cut down, and if we in a research it has been found that more than 15 trillion trees are cut down in a year. So, and we are planting only 5 trillion trees in a year, so that there is a loss of 10 trillions of trees. So, and our ecosystem is disbalanced. Mainly, there are many reasons for the imbalance of the ecosystem, but the cutting of trees, that is deforestation, that is the main reason. And we can also it is the most prevalent reason of disbalance of ecosystem. So, and if we talk about the causes of deforestation, there are many reasons behind this, which occurs man-made wise also and natural also. Some drought and the high rain, heavy rainfall is the main cause of it. And regarding man-made, we are also doing desertification of land, and we are also Stop. Shweta, your time is up. Thank you so much. Thank you, Thank you, Shweta. ma'am. The next contestant we have is Neha Kumari. Neha, could you please unmute yourself? From B5. Neha From B5B. Neha Kumari. Yes, Are ma'am. you ready, Neha? Yes, ma'am, I'm ready. Okay, all the best. Thank Your you, time sir. starts. नमस्कार. Your time starts now. नमस्कार, मैं B5B की छात्रा नेहा कुमारी आज इस विषय पे समूह चर्चा करना चाहती हूँ कि पारिस्थितिकी तंत्र और वन. पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले परिभाषा 1935 में ऑर्थर टॉन्सले ने करना चाहा था, जिसमें उन्होंने कहा था कि पारिस्थितिकी तंत्र सभी जीवित प्राणियों या प्रजातियों का एक समूह है जो पूरे वातावरण को निर्मित करता है.
पारिस्थितिकी तंत्र के प्रमुख घटक हैं जिसमें जैविक घटक होते हैं और अजैविक घटक होते हैं। जैविक घटक का ही सबसे महत्वपूर्ण भाग है उत्पादनकर्ता अर्थात वन वृक्ष। वन वृक्ष ये सभी हमारे मनुष्य के वातावरण को जीवन योग्य बनाते हैं। इनकी आवश्यकता हमारे अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी है। वन का प्रभाव हर स्थिति में हम देख सकते हैं कि जल के लिए भी वनों का होना बहुत महत्वपूर्ण है। या मिट्टी को संगठित करता है ताकि पृथ्वी में जो पीने योग्य जल है वो बचा रहे। यह वातावरण को शुद्ध करता है। दुर्लभ प्रजातियों का आवास प्रवास ये है। तो ये पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से चलाने के लिए, ताकि यहाँ पृथ्वी पर जो एकमात्र ग्रह है जीवन योग्य, तो इसको पृथ्वी को अस्तित्व में रखने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का सुचारू रूप से चलना अति आवश्यक है। यह महत्वपूर्ण है कि हम इस पे ज्यादा गौर करें, क्योंकि जिस प्रकार हमारे आवश्यकताओं, हमारी महत्वाकांक्षाओं की जो लालसा बढ़ती जा रही है, जिस वजह से हम पेड़ वृक्षों को सब अविवेक पूर्ण से काट रहे हैं या उनके पुनर्निर्माण के लिए विचार नहीं कर रहे हैं, तो सरकार को ये गौर करना चाहिए कि उन्हें कड़े नियम लागू करने चाहिए, नीतियां बनानी चाहिए। 2015 की रिपोर्ट के अनुसार हमारे देश में तमिलनाडु ऐसा राज्य है जिसमें वृक्षों की वृद्धि। Thank you ma'am. Thank you. Stop here. Yeah, thank you Neha. Our next contestant is Neeraj Mishra from B4. Neeraj, please unmute yourself. Yes. Yes, ma'am. Are you ready, Neeraj? Yes, ma'am. Start kare. Best of luck. Thank you, ma'am. Best of luck. Your time starts now. Start, Neeraj. आज मैं जूम के इस मंच पे वन महोत्सव के 5वें दिन मेरे अतिथि महोदय और मेरे सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथ ही मेरे सहपाठियों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि मुझे इस समूह चर्चा में बोलने का मौका दिया गया। आज का हमारा विषय है पारिस्थितिकी तंत्र और वन। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वन हमारे जीवन के लिए और इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र को सुचारू रूप से सही रखने के लिए बहुत जरूरी है। वनों की कटाई बहुत हद तक बहुत मतलब बृहद स्तर पर हो रही है, जिससे कि न सिर्फ मानव मात्र बल्कि प्रत्येक प्राणी का ये मतलब जीवन नष्ट हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का लेवल भी कम हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इन सब हानिकारक गैसों की मात्रा वातावरण में बढ़ती जा रही है। हमारे ओजोन लेयर में भी बहुत बड़ा छेद हो चुका है, जिससे कि पराबैंगनी किरण जो सूर्य से निकलती है, अल्ट्रावायलेट रेज, वो भी हमारे शरीर को बहुत हद तक हानि पहुंचाती है। हम रोग के शिकार हो जाते हैं। हमें चाहिए कि हम वनों का अधिक से अधिक बचाव करें, वनों का संरक्षण करें। और वनों की कटाई का सबसे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि बढ़ती हुई जनसंख्या और कल कारखानों का बृहद स्तर पे बढ़ना। इन सभी चीजों को नियंत्रित किया जाए और वनों को संरक्षण किया जाना चाहिए। और पारिस्थितिकी तंत्र और वन नहीं रहेगा तो प्राणी का अस्तित्व ही इस पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। Okay, ma'am. Neeraj, thank stop. you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Neeraj. Our next contestant is Tarannum Nisha. Tarannum Nisha from D4 is our next contestant. नमस्कार, मेरा नाम तरन्नुम निशा है। मैं कक्षा D4 की छात्र हूँ। आज का मेरा विषय Wait, Tarannum. Are you ready? Oh, yes. Are you ready? Yes. Let's start. Yes. Okay. Best of luck, Tarannum. Thank you, ma'am. सही रहेगा। Your time starts now. Start. मेरा नाम तरन्नुम निशा है। मैं कक्षा D4 की छात्र हूँ। आज का मेरा विषय है पारिस्थितिकी तंत्र और वन। जैसा कि हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो वनस्पति जगत, जीव जंतु और हम मानव के मेल से बनता है। हम एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। हमारे संतुलित व्यवहार और संतुलित निर्भरता के कारण ही
जीवन का जो है संभव है। हम जानते हैं कि जिस तरह से हमारे लिए सांस लेना आवश्यक है, उसी तरह से जो सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन मिलती है वो हमें वनों से प्राप्त होती है, यानी वृक्षों से प्राप्त होती है। इसलिए वन का हमारे जीवन में एक बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण स्थान है। हमें चाहिए कि आज के जीवन में जब ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है, हमारी अपनी आवश्यकताओं और महत्वाकांक्षाओं को, जिसमें हम कई तरह के प्रौद्योगिकी का विकास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ता जा रहा है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र को उथल पुथल कर रहा है और उसकी संतुलन को बिगाड़ रहा है। आज के समय में हमें चाहिए कि हम अपने पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने के लिए उसके लिए विशेष कदम उठाएं, जिसके लिए हमें चाहिए कि हम जितने भी जीवाश्म ईंधन है उनका कम से कम उपयोग करें, ज्यादा से ज्यादा हम सौर ऊर्जा का उपयोग करें और जल ऊर्जा का उपयोग करें उसके स्थान पर, और हमें वनों की कटाई पे रोक लगाना चाहिए। जिस तरह से हम इमारतों का निर्माण कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, फैक्ट्रीज बना रहे हैं, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये इंडस्ट्रीज और इमारतें तो रह जाएंगी, लेकिन इसमें रहने के लिए इंसान ही नहीं बचेंगे अगर हम इसके लिए आज से तैयारी न कर लें और इसके लिए कोई विशेष और महत्वपूर्ण कदम ना उठाएं। इसीलिए हमें अपने पारिस्थितिकी तंत्र को बचाने के लिए चाहिए कि हमें वन का संरक्षण करना चाहिए। सरकार ने तो अपनी तरफ से कई कदम उठाए हैं, लेकिन एक नागरिक होने के कर्तव्य से हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम अपनी तरफ से Tarannum, stop beta, your time stops here. Thank you. Thank you. Next contestant and the final one to speak in this group discussion is Sambhav Kumar. Am I audible? Yes. Sambhav, are you ready? Yes, ma'am. Ready, Sambhav? Yes, ma'am. Okay, best of luck, Sambhav. Thank you so much, sir and ma'am. Thank you so much. Shall I start? Your time starts now. Okay. First of all, good morning to respected teachers and respected judge, sir, and to all my companions. Today I have been given the topic is ecosystem and the forest. First of all, I would like to say the ecosystem is made up of all the things which are in our surrounding. So it's our response, and the most important thing that forest is the thing that balance our ecosystem also. So we first of all have to just think about it that like today we are seeing the forests are being cutting down so much. People are not even thinking that the forests are giving us so much of things, and still we are cutting them. We are not thinking about without anything that if there will not be any forest, their life will not be possible for us. Because as we know that, and main very important thing is the tree. That is a great gift of the nature, which is just maintaining our ecosystem also, and it's balancing our life too. Because we know that if there wouldn't be any tree in the world, life will not be possible for us, because it gives us a very important thing, that is the oxygen, and without oxygen it's not possible for humankind to just survive. So I would definitely say that the forests are very important to maintain the ecosystem of ours, because the trees who gives us oxygen, fruits, and even the so many organisms which are living in the forest, they are just that is the shelter of there, and that giving we are getting so many things from the ecosystem, means from the forest also. So I think we should take odd today to just planting so many saplings, so that we can just maintain our ecosystem, and we never harm them, because we know that the deforestation is taking so much of place. And to just appreciate the afforestation, we cannot stop the deforestation. Stop. Sambhav, stop. Thank you, Sambhav. Thank you so much. Thank you, ma'am. So there we end with the first round of this group discussion, where all the contestants were given 2 minutes to speak their mind, to speak their views and opinions on the given topic by respected judge sir. आदरणीय जज महोदय के द्वारा दिए गए टॉपिक पर हमारे छात्रों ने अपने अपने विचार रखे, जिसके लिए उन्हें 2 मिनट की अधिकतम समय सीमा प्रदान की गई थी। अब हम एक एक करके छात्रों के विचार सुनेंगे, जब वो दूसरे छात्र के पॉइंट्स को किस तरह से डिफेंड करते हैं और उन्हें क्या कहना है। So we will first begin with Shweta Kumari. Shweta, are you ready? Yes, ma'am. Okay. Are you ready? Ready? Yes, ma'am. Shall I start? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am.
Ma'am, I slightly have different point of view or opinion with my friends. Like नेहा told कि सरकार को कुछ अच्छा नीति लाना चाहिए, but मेरे अकॉर्डिंगली हम लोग को इंडिविजुअली इनिशिएटिव लेना चाहिए, लाइक द डिटर्मिनेशन, क्योंकि हम लोग अगर रिसोर्सेज जैसा मानेंगे प्लांट्स और ट्रीज को तो नहीं होगा। हम लोग को प्रोवाइडर मानना चाहिए, और अगर हम लोग उसको प्रोवाइडर मानेंगे तभी हम लोग समझेंगे कि उसका यूज जो है लिमिटेशन है और हम लोग उसको लिमिटेड वे में यूज कर सकते हैं। सो हम लोग उसमें बोल सकते हैं कि हम लोगों को एक इनिशिएटिव, इंडिविजुअल इनिशिएटिव लेना चाहिए। जस्ट लाइक हम लोग अगर स्टार्ट करते हैं अगर इंडिविजुअली, तो हम लोग घर से स्टार्ट करेंगे और स्कूल से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोगों को घर से स्टार्ट करने के लिए हम लोग छोटा छोटा we can like encourage our neighborhood. We can also start a workshop in the school, मतलब अभी कुछ बहुत सारा टॉपिक ऐसा चल रहा है, एनवायरमेंट डे ये वो, तो हम लोग इसमें ये कर सकते हैं कि हम लोग कुछ प्लांटिंग ट्रीज को मैंडेटरी बना दें अगर हम लोग अपने सब्जेक्ट में। Stop. Time ends over here. Okay. Thank you. Okay. Thank you, Shweta. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. The next contestant that we have now with us is Neha Kumari. Yes, ma'am. Okay. Are you ready, Neha? Yes, ma'am. Start करें? ठीक है. Best of luck. Thank you, ma'am. मुझे सभी की चर्चा बहुत अच्छी लगी, लेकिन मुझे यहाँ ये प्रतीत हुआ कि यहाँ पारिस्थितिकी तंत्र और वन को थोड़ा सा सीमित कर दिया गया है। उन्होंने सिर्फ ऑक्सीजन या फिर जीने के लिए या फिर इन्हीं सब चीजों को सीमित करके बताया है। वो अच्छा होता कि ये पूरा पर्यावरण ही हमारा है, तो पारिस्थितिकी तंत्र पूरा मतलब पृथ्वी ही पूरी तरह से पारिस्थितिकी तंत्र पूरा निर्माण होता है। पारिस्थितिकी तंत्र से ही वातावरण का निर्माण होता है, सभी प्रजातियां तालमेल बना के रहती हैं। तो वृक्ष सिर्फ पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आवश्यक है ही, ऑक्सीजन के लिए भी आवश्यक है, लेकिन इससे ज्यादा आवश्यक है कि वो वर्षा में योगदान देते हैं, वो कार्बन को संशोधित करते हैं, प्लस वो हमारे जीवन के सभी दुर्लभ प्रजातियों का आवास स्थान है। तो हमें आवश्यकता है कि उन सभी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए। Thank you. Next we have with us Neeraj Mishra. Yes, ma'am. Okay. Neeraj, are you ready? Neeraj, start करें. Yes, ma'am. I am ready. Okay. Okay. Let's start. And Start, Neeraj. yes, ma'am. Yes, begin. Start. Okay, ma'am. मैं नेहा के और अपने फर्स्ट कंटेस्टेंट के विचारों से बहुत हद तक सहमत हूँ मैम। इन लोगों के विचार सच में बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैम इसके साथ साथ हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि वनों का स्तर अगर कम होता रहे, वन में जो मतलब जीव जंतु रहते हैं लाइक स्नेक्स हैं, इंसेक्ट्स हैं और बहुत सारे एनिमल्स हैं, ये सभी मैम पर्यावरण के मित्र हैं। वन को बचा कर रखेंगे तभी तो हमारा अस्तित्व रहेगा मैम। एक कारण ये भी है कि कचरा का अंबार बनता जा रहा है पूरे विश्व में, और इससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र अनबैलेंस्ड हो गया है मैम। इसलिए वन को बचा कर रखना चाहिए, वन को संरक्षित करना चाहिए और कोशिश करें कि हमारे देश की जो जनसंख्या है। Okay. Thank you, Neeraj. Thank you so much for putting on your views. Thank you so much. The next contestant with us is Tarannum Nisha. Ready, Tarannum? Yes, Start ma'am. करें? Yes, Okay. Best of luck. Thank you, ma'am. Start. मैम, मैं अपने फर्स्ट जो कंटेस्टेंट है श्वेता कुमारी और नेहा से बिल्कुल सहमत हूँ कि हम सब ही इस बात में बात करें कि हमें वनों का संरक्षण करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, वन्य जीवों के लिए आवास है। हम सब इसी पे चर्चा करें, लेकिन मैं श्वेता कुमारी से ज्यादा सहमत हूँ कि हमें इसके लिए, सरकार तो इसके लिए कदम उठाएगी, लेकिन हम सबको भी इसके लिए इंडिविजुअली कदम उठाना चाहिए।
हर एक को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। वन महोत्सव जो कि मुंशी द्वारा 1950 में शुरू किया गया, वो इसी चीज की जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए था कि हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करना चाहिए, वनों का संरक्षण करना चाहिए। सारी बात आकर एक ही जगह इकट्ठा होती है कि इससे वन्य जीवों को आवास मिलता है, हमारे लिए प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन बनता है, वो सारी चीज अपनी जगह में बिल्कुल ही है ही, लेकिन उसके लिए हमें कदम क्या उठाना चाहिए, हमारा सोल्यूशन क्या होना चाहिए, हमें इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। नीरज की जो बात थी कि कचरों का जो बहुत ज्यादा खंडार होता जा रहा है, थैंक यू, थैंक यू। Our next contestant in queue is, and our last contestant for today's group discussion is Sambhav Kumar. Yes, ma'am. संभव start करें? Yes, ma'am. Okay. Begin. Start. First of all, I would say that all the contestants who have spoken about this quite amazingly, they have spoken. But one thing I would like to say that obviously we have to save our ecosystem, have to save our forest, but we cannot deny from this also that we have to cut the trees somewhere, because it's also our need. Because if we will not use the furnitures and all those things will come from the wood only. So we have to just do one thing, that we should not cut the trees endlessly. We have to cut this in limit, so that it completes our necessities also, and it can be saved also. And one more thing we have to do, that we should plant the saplings more and more, so that if we are cutting the trees, we get to see that some plants are also growing up, and ecosystem is just being balanced. So I would just defend with this only, that we shouldn't say that we haven't to cut the trees. We have to cut the trees. Stop. Okay. Stop your time. Thank Thank you. you so much, Sambhav. Thank you. So much. Thank you, ma'am. And with that, we come to the end of today's this group discussion competition. Undoubtedly, we made it very short and sweet, since we are having a time constraint of 40 minutes. This Zoom meeting जो 40 मिनट की समय सीमा है, उससे बाध्य होते हुए हमने ये छोटा सा ग्रुप डिस्कशन रखा था। मैं हमारे बीच इतने गणमान्य, इतने जो हमारे आज के जज महोदय हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे कृपया हमारे छात्रों को अपने ज्ञान भरी बातों से उन्हें मार्गदर्शन दें, उन्हें बताएं, आज के इस वन महोत्सव के बारे में कुछ उन्हें आलोकित करें। नमस्कार, मेरे तरफ से प्रधानाचार्य महोदय को, शिक्षक वृंद को, आपके सभी अतिथिगण को और सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरे तरफ से इस वनोत्सव की हार्दिक अभिनंदन। मेरा ये कहना है कि ये पांचों बच्चे बहुत ही अच्छी तरह अपने विचारों को प्रकट किया। अब है जहाँ कंपटीशन है, डिबेट है, वहाँ कुछ पॉइंट्स किसी का कम या ज्यादा होता ही है, उसमें कोई बात नहीं है। फिर भी इन लोगों ने अच्छी तरह से कोशिश की है। और मेरा जो ये कहना है, ये जो आप लोगों ने वन महोत्सव मनाया, वो सिर्फ मनाना ही ना हो, इनको असली जीवन में उसको कार्य में बदलना है, उसको ट्रांसलेट इनटू एक्शन करना है, ताकि हम लोग जिस सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं उसका सचमुच में देश को, इकोलॉजी को लाभ हो। सभी जानते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस हमारा बहुत डिस्टर्ब हो गया। आए दिन इन वनों का कटना, इसका जो क्या कहेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स जो हो रहे हैं, जैसे टाइफून, अभी बहुत फ्रीक्वेंटली आप देखेंगे बहुत तरह का टाइफून आ रहा है, साइक्लोन आ रहा है, लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं। सबों का कारण अल्टीमेटली देखा जाए तो यही वनों का कटना है, डिफॉरेस्टेशन ही है। तो हम लोग को, सभी लोगों को एफॉरेस्टेशन के लिए इनकरेज करना है, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। ये भी जरूरी है कि हमारी जरूरतों को पूरी करने के लिए हमें लैंड को एक्वायर करना पड़ता है, फैक्ट्री को लगाना पड़ता है, पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, इसके लिए हमें रहने योग्य जगह भी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी ध्यान देना है
के कटने से जो मेरा हम लोग के पर्यावरण में इकोलॉजिकल बैलेंस जो डिस्टर्ब हो जाता है, ओजोन लेवल जो डिस्टर्ब हो जाता है, इससे जो डिजास्टर हो रहे हैं उसको भी रोकना है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ है कि उसको फिर से एफॉरेस्टेशन किया जाए। अगर उतनी जगह नहीं है तो हर लोग जो है अपने तरफ से एक आध पेड़ हर साल लगावे, और यही एकमात्र पर्यावरण को और इकोलॉजिकल बैलेंस को रोकने का उपाय है, और दूसरा कुछ भी नहीं। बस मैं इन्हीं शब्दों से अपना लेक्चर को विराम देता हूं और आप लोग को फिर से एक बार अभिनंदन करता हूं। और आप जो हम जैसे लोगों को जज बनाने का जो मौका दिए, उसके लिए मैं अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित भी अनुभव कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद सर, ये हमारे लिए गर्व और गौरव का विषय है कि आज आप हमसे जुड़े, आपने अपना कीमती समय हमसे साझा किया, हमारे छात्रों को सुना और उन्हें अपने ज्ञानवर्धक बातों से उनका उत्साहवर्धन किया। इस प्रोग्राम के अंत में मैं हमारी फैकल्टी माधुरी मैम से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया धन्यवाद ज्ञापन कर इस कार्यक्रम को इतिश्री प्रदान करें। धन्यवाद भाग्या मैम। सुप्रभात, नमस्कार। आज पुनः यह कहते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमारे महाविद्यालय में आयोजित श्री वनोत्सव कार्यक्रम सफलता का एक बड़ा इतिहास बनाते हुए संपन्न हो गया है, और आज के सत्र के लिए धन्यवाद ज्ञापन का मौका मुझे मिला है। इसके लिए सबसे पहले मैं भगवान का शुक्रिया अदा करती हूँ। महाविद्यालय के चेयरमैन श्री सुखदेव महतो सर, सेक्रेटरी श्री गुरुदेव महतो सर का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उनके मार्गदर्शन में हमारा यह कार्यक्रम सफल रहा। साथ ही निर्णायक महोदय को भी हृदय से कोटिशः धन्यवाद, जिन्होंने अपना कीमती समय हमें प्रदान किया। हमारे सभी प्रतिभागी नेटवर्क की वजह से माधुरी मैम डिस्कनेक्ट हो गई हैं, बट वो आ गई हैं फिर। यस मैम। जी मैम। हेलो। हाँ जी मैम, कंटिन्यू करेंगे। शिवानी का भी मैं धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। महाविद्यालय के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, खास तौर से भाव्या मैम को, इनका समर्पण और जुनून काबिले तारीफ है किसी भी कार्य के प्रति। और अंत में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए पुनः आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच माधुरी मैम। सो विद इन दिस 40 मिनट्स ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट, इस 40 मिनट के समय का इससे बेहतर सदुपयोग मुझे नहीं लगता है हो सकता था, जहां पर हमारे छात्रों ने, हम सब ने एक दूसरे से इतना कुछ साझा करके इतना कुछ सीखा। मैं जज महोदय से अनुमति चाहूंगी कि मैं इस मीटिंग को समाप्त करूं, और उम्मीद करते हैं कि हम सब जल्दी ही फिर मिलेंगे। सर, कैन आई एंड दिस मीटिंग? Of course. Thank you so much, sir. Thank you, students. Thank you, faculties. Thank you for joining all. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you so much.